Hello, good morning student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is the apparent size of an object. Actually, what is the apparent? Apparent is a non-true, just and true objects. Actually, when we observe any object, that time we have gets is a considering size is a somewhat different, but actually objects have a same size, just okay, and having that same size, but we have feel it, we have when we have observe it, that time we have feel it, yes okay, their size is goes to the differ, yes, but it is not actually real there, just okay. So and this getting, that is a somewhat different in that change in size of that object, yes okay, it is one have a apparent, it is one have a apparent, that is we have says in मराठी आभासी, है ना, हम उसे आभासी बोलते हैं, है ना। कोई जैसे कि चीजें हो, दो या तीन चीजें से एक लाइन में स्ट्रेट पोजीशन में ऐसी सिचुएट है, अभी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो अपने आंखों के सामने जो वाला ऑब्जेक्ट है, यस इट्स वन हैव अ ग्रेटर इन साइज, yes okay, and behind its, yes, those objects have a actually same in size, but we have feel it, yes it is a smaller size than comparing to the first, yes okay, and we have get it, that's a continue, yes okay, as a serially, yes goes to that behind to that object, that time we have feel it, it is a smaller, became a smaller and became a smaller there, but it is a not in a true, yes, and that's is apparent, that's is apparent, आभासी बोलते हैं उसको, yes, and true is nothing but जो हमें दिखाई देता है, जो वास्तव होता है, जो ऑब्जेक्ट्स, तो जो वास्तव में दिखाई देता है दैट्स नॉट ट्रू, बट जैसे हमें वो वैसा है, उससे बड़ा है या है ना साइज में बदलाव है, ऐसे हमें जैसे प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता है, दैट इज एपरेंट, दैट इज एपरेंट हियर। अभी वही यूनिट हम यहाँ पे आज देखेंगे। देखिए बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस यूनिट today's class, that is the apparent size of an object, yes, apparent size of an object. So let us first start, so we will go to in our next slide. Student, do you follow here the one simple procedure, and for carrying this simple procedure we do the some important activities here, yes, which important activities we have followed here, just that's number one is, that is a, yes we have choose here two different objects, yes okay, having the same size, suppose it may be get in a naturally sources, yes, from in our surrounding, yes okay, if you not get it in our nature, yes in our surrounding, that time we have choose it artificially, yes we have choose the two object having the same size and we have arrange it, yes as shown in a figure. Again we have do the good observation there, and after the carrying this observation, just we have put it their readings in our observation table, just okay, and again we have learns it comparatively, and we have learns the actually this today's point, that is a apparent size of an object, just so we have, let us start in our next slide. Here we have learned the procedure, so we have carried it stepwise, just okay, one by one. So first, yes, what you do here, that is a consider two object. देखिए बेटा, यहाँ पे consider two object ऐसा बताया, actually what is a consider two object, देखिए क्योंकि ऐसे बोलने का या देने का यहाँ पे एक रीज़न है, क्योंकि देखिए बेटा कभी कभी अपने आजू बाजू में हमें ऐसी कई नेचुरली कुछ चीज़ें मिलती है जो कि वो विशिष्ट दूरी बनाते हुए ऐसे अरेंज होती है ना, एक जैसे ही साइज की वो चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ चार पांच पेड़ है और एक ही लाइन में क्या है बेटा, वो ऐसे हमें दिखाई देते हैं, वो सेम साइज वाले पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे पेड़
या कोई ऐसी चीज़ है हमें नेचुरली मिल सकती है, तो यहाँ पे हमें वो जैसे कि आर्टिफिशियल ऐसे अरेंज करने की कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं मिल पड़ेगी। लेकिन ऐसी चीज़ें मिलेगी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये चीज़ें नेचुरली होने के कारण ये नहीं मिल पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंसिडर ऐसा यहाँ पे बताया है। चलिए बेटा, तो ऐसे दो चीज़ें है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें लेना है। जैसे कि पहले प्रोसीजर में हमें आर्टिफिशियली रूप से यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि अपने पास ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे वैसे अवेलेबल नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे अभी सोचकर ये पॉइंट या ये प्रोसीजर, पहली प्रोसीजर हमें यहाँ पे दी वाली है। जैसे कि हम पहला ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो पी क्यू ऐसा है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, यहाँ पे पी डैश क्यू डैश ऐसा ऑब्जेक्ट है, और दोनों भी कैसे बेटा यहाँ पे सेम साइज वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसको हमने कैसे रख दिया है, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम एन आईज, है ना, अपने आंखों के सामने एक विशिष्ट दूरी के ऊपर उसको हमने रख दिया है, ठीक है। दिस इज दैट इज अ फर्स्ट एक्टिविटी, ये पहली वाली प्रोसीजर है। चलिए अभी देखिए बेटा दूसरी वाली प्रोसीजर। अभी यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो हम उस ऑब्जेक्ट को है ना बेटा हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो देखिए बेटा, फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर सेल्फ, ने स्वयं के कन्वीनियंस के लिए उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिए वाले हैं, है ना। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने पी क्यू ऐसा नाम दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पी डैश क्यू डैश ऐसा नाम दिया। दिस इज अ कन्वीनियंशियल नेम बस आवर सेल्फ के लिए, ठीक है बेटा, खुद के लिए हमने उसको अंडरस्टैंडिंग में सहजता हो इसीलिए मैं उसको नाम दिए वाले, ठीक है बेटा। अभी हमने यहाँ पे देखिए बेटा, वो जो दो ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने एक विशिष्ट दूरी के ऊपर ऐसे रख दिए वाले, तो वो क्या करते बेटा, ऑब्जेक्ट एज द एंगल, वो एंगल बनाते हैं अपने आंखों को लेकर, है ना बेटा। तो देखिए ये बनने वाले जो एंगल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, द एंगल इज सस्पेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, पी क्यू ऑब्जेक्ट है, और पी क्यू ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल यहाँ पे सब्सटेंडेड होता है, अपने आंखों में जो एंगल मिलेगा उस ऑब्जेक्ट को लेकर, वो जो एंगल होता है, ठीक है बेटा। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो मिलने वाला एंगल, यस वी हैव कंसीडर हियर दैट इज अल्फा, यहाँ पे कौन मिल रहा है, एक अल्फा है। एंड फॉर अदर ऑब्जेक्ट जो कि दैट इज अ बिहाइंड, बिहाइंड टू इट, फर्स्ट के बिहाइंड है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक एंगल अपने आंखों में यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो वो जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है उसको हम क्या कर बोलते हैं, दैट इज अ बीटा एंगल, ठीक है। और वो वाला ऑब्जेक्ट कौन सा था जो कि फर्स्ट के बिहाइंड था, दैट इज अ पी डैश क्यू डैश। समझ में आ रहा है ना बेटा। देखिए बेटा, मैं इसको कंटिन्यू ऐसे उस पॉइंट को या प्रोसीजर को रीड करता हूँ। एज द एंगल अल्फा, देखिए सबटेंडेड बाय द पी क्यू, वो सबटेंड हो रहा है पी क्यू को लेकर, उस ऑब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। और कहाँ वो एंगल बनाता है, अपने आंखों आंख को वो एंगल बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर आंख में जो एंगल बनती है, यस हमने उसको कंसिडर किया है वो अल्फा है, ठीक है बेटा। अभी देखिए ये जो एंगल मिल रहा है यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर, तो एंगल वो कैसा है, बड़ा है। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है बेटा, पी डैश क्यू डैश, उस ऑब्जेक्ट को हम उसको कंपैरिजन करेंगे दो एंगल को, है ना, अल्फा एंड बीटा को। तो देखिए बेटा, अल्फा एंगल यहाँ पे बड़ा मिलता है और बीटा एंगल यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। अभी देखिए बेटा, पी क्यू ये जो अपीयर्स है दैट इज बिगर देन पी डैश एंड क्यू डैश, जो एंगल बड़ा बन रहा है वो जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बताया, ये प्रोसीजर में हमें ऐसा लगता है ना बेटा, पी क्यू अपीयर, अपीयर यानी हमें लगता है जैसा दिखाई देता है, इज बिगर देन द पी डैश क्यू डैश। चलिए अभी देखिए बेटा, इसी तरह से जो अपरेंट साइज होती है, अपरेंट यानी कि आभासी साइज जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। देखिए IMP है यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सा इस गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल होता है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपरेंट क्यों लगती है हमें,
तो अपरेंट साइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्यों मिलता है, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर होता है बेटा, दैट्स एंगल इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है टू आई, ठीक है बेटा। तो इसी को लेकर हमें ये अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है, ठीक है। एक्चुअली ये कैसा होता है, इसको हम अभी क्या करते बेटा, एक रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पे हमें उसको लर्न करेंगे। तो हम अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। In this slide we will learn here the clarify the terms, that is the apparent size of an object, and for its clarification, for its understanding, we will learn here the ray diagrammatic representation. Actually when we have use the ray diagrammatic representation, that time we have arranged the one systematic way there, this okay. And when your object arranged, that time this surface is must should have in a plane horizontal, this okay. And on it we have arranged the two object and we have observed it, this okay. And when we observe it, that time we have learned the apparent size of an object, how we have learned here. And for its more clarification, for its understanding, yes, we have learned simply ray diagrammatic representation method here. So देखिए बेटा, पहले हम यहाँ पे इसे लर्न करेंगे। लर्न करने से पहले ये अपरेंट साइज क्या होता है एक्चुअली, जैसे हम सिंपली सहजता से इसको क्या बोल सकते हैं। देखिए जैसे अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम इसको जैसे प्रोसीजर में हमने लर्न किया, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि ये डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर निर्भर होता है बेटा, दैट्स डिपेंड्स अपॉन द दैट इज अ सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट, यस ओके, एट ए आई, है ना। तो इस एंगल के ऊपर वो निर्भर होता है। तो उसी तरह से देखिए बेटा, यहाँ पे जो मुझे ऑब्जेक्ट अपरेंट साइज में दिखाई देता है, मिलता है, तो ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। तो देखिए बेटा, पहली बात जो होती है ये महत्वपूर्ण है। देखिए बेटा, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात याद रखनी है। यहाँ पे अभी दूसरी बात हमें जो मिलती है, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द यस दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर से वो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है, वो अंतर, ये यहाँ पे हमें दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है। अभी इसी को लेकर देखिए बेटा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं बेटा, जैसे एंगल बनाते हैं आँख को लेकर, है ना। दैट इज देखिए बेटा, इसीलिए तो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे कि सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए बेटा, इसीलिए यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंटर के द्वारा देखिए ये आई है यहाँ पे, है ना, अपनी आंख है ऑब्जर्वर की, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट अरेंज कर दिया है कि दोज आर नियरर टू आई, है ना, जो आंख के नजदीक है ना, उस ऑब्जेक्ट को मैंने अरेंज कर दिया। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एक विशिष्ट दूरी के ऊपर मैंने, देखिए बेटा, बिहाइंड, उसके पीछे, पहले ऑब्जेक्ट के पीछे उसको मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। अभी अरेंज करने के बाद देखिए बेटा, यहाँ पे अपने आंखों के द्वारा, है ना, हम उसको देखते हैं। तो देखिए बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो जैसे कि कुछ एंगल यहाँ पे बनाते हुए दिखाई देता है। देखिए बेटा, जो पहले ऑब्जेक्ट से यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे क्या होता है बेटा, सबटेंडेड होता है ना। और वो सबटेंडेड होकर वो एंगल आप को लेकर वो यहाँ पे एंगल बनाते हैं, वो अल्फा एंगल यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अभी देखिए बेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि क्या बेटा, बिहाइंड द फर्स्ट, अभी उसको जो से हम देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि
वो क्या कहता है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहता है बेटा, सबटेंडेड द एंगल एट आई। तो वो क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे बीटा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो बीटा मिलता है। तो दो एंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए दो एंगल जब बनते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा है बेटा, तो यहाँ पे अल्फा एंगल यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, और बीटा एंगल यहाँ पे क्या है, छोटा है तुलना में, है ना बेटा। एक्चुअली यहाँ पे जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट हमने उसको क्या नाम दिया बेटा, दैट इज अ पी क्यू। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या नाम दिया है, पी डैश क्यू डैश। ऐसे दो नाम दिए, दैट इज वन है वो कन्वीनियंशियल नेम, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पी क्यू एट आई इज अल्फा देयर, ठीक है बेटा। अभी देखिए सेकंड कंडीशन में, द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट विच दैट इज अ पी डैश क्यू डैश मेकिंग एन एंगल एट आई, दैट इज अ बीटा हियर, जस्ट ओके। एंड दिस टू एंगल वी हैव गेट इट। देखिए बेटा यहाँ पे एक पहला वाला ऑब्जेक्ट को लेकर हमने जैसे लर्न किया, तो यहाँ पे मिलने वाला एंगल कितना मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बीटा एंगल मिल रहा है। तो देखिए दोनों एंगल यहाँ पे अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, अलग है। चलिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट इस, जैसे कि साइज तो सेम है ऑब्जेक्ट की, दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है, ये पहला पॉइंट जो कि हमें याद रखने के लिए यहाँ पे बताया वाला है। दूसरा वाला पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे एंगल है ना बेटा, जो कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यस एट आई, है ना, आई को लेकर यहाँ पे बनने वाला एंगल। जैसे इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे उसको ही फोकस करना है, दो बातें यहाँ पे हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अभी हमें ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे क्या करना है, उसको जैसे कि फुलफिल करना है। चलिए बेटा, अभी ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे हमें दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेने हैं, दो रीडिंग्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, रीडिंग लेते हुए हमें दो यानी कि तीन बातों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहली बात यहाँ पे क्या बेटा, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चलिए बेटा ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, वो एंगल इज दैट इज सबटेंडेड टू द आई, जिसे आई को लेकर, ठीक है बेटा। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है बेटा, नेचर ऑफ द इमेज हियर, ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए ये पूरे जैसे हम लर्न करते हैं, तो देखिए बेटा जो ऑब्जेक्ट नियर था तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पे अल्फा कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे नंबर के द्वारा यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि 32 मिलता है। तो इमेज ऐसे कैसी मिल रही है बेटा, लार्ज मिल रही है, रियल मिलती है ना, लार्ज है रियल है, ध्यान दीजिए लार्ज और रियल है। लेकिन एक्चुअली सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूरी पे है ना। तो यहाँ पे मिलने वाला एंगल यहाँ पे क्या था, जैसे कि वहां पे कंसिडर किया था बीटा मिला था, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लमसम एंगल यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि 25 मिला शायद, वी हैव कंसीडर एज हियर, ठीक है। तो ये एंगल कैसा बन रहा है बेटा, यहाँ पे छोटा बन रहा है। तो जैसे एंगल यहाँ पे छोटा बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे मिलने वाली जो इमेज मिलती है तो स्मॉल इन साइज एंड वर्चुअल, जैसे उसे एपरेंट मिल रही है यहाँ पे, लेकिन ये एपरेंट, ऊपर वाली रियल थी और नीचे वाली कैसे बेटा यहाँ पे वर्चुअल है, दैट इज एपरेंट हियर, ठीक है। तो एक एपरेंट मिलती है यहाँ पे। तो देखिए, तो ये टेबल के द्वारा ऐसे हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमें देखिए बेटा क्या मिल रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन करेंगे, इसके द्वारा हम अनुमान क्या ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल, ये किसके ऊपर निर्भर होता है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो अपनी आंखों को जो एंगल उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, जो देखिए बेटा, हाँ यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग यूज किया है, सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। तो इसके ऊपर ए
एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। जैसे कि जितना एंगल बड़ा होगा, ठीक है, तो वो जो इमेज होती है हमें यहाँ पे कैसी बड़ी दिखाई देती है, और जैसे एंगल छोटा 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 होता है तो यहाँ पे साइज भी हमें छोटा 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 होते हुए प्रतीत होती हुई दिखाई देता है। एक्चुअली वैसा नहीं होता है रियल में, ठीक है। तो यहाँ पे एपरेंट, इसीलिए तो यहाँ पे एपरेंट इज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे और एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए बेटा, अभी यहाँ पे हम कौन सी बात ध्यान में रखेंगे, द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल सबटेंडेड एट द आई, एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी वाली यहाँ पे एज द एंगल इंक्रीजेस, देखिए एज द एंगल इंक्रीजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिकेम ए लार्जर, वो क्या होती बेटा यहाँ पे लार्ज होगी, ठीक है। तो देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो वी हैव कम इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। In this slide, we have learned some example, yes, which is related to the apparent size of an object. So, I have given one good example here. I have shown on screen one fort. This is a picture of a fort here. This is the Agra fort. Yes, and this is the entrance of the fort. Entrance of the fort. Just okay. And when you enter into the fort, that time there are yes big doors, entrance are there, yes. And when you enters into the fort, that time we have yes observe there in front of with each other there are many doors are arranged, there are many doors are arranged, and when we have looks to them, that time which is nearer to your eyes, which door is nearer to your eyes, yes, it's look like a big door, yes, okay. And when your vision yes is goes extend far, that time that's behind doors we feel it's yes they are smaller in size, they are smaller in size, but actually not this, just okay, we have feel it, that is apparent, that is a apparent, yes, non-real there, just okay. Why, yes, behind it's, इसके behind इसके पीछे क्या है बेटा, that's a yes that is a apparent size of an object, that is a angle making to the eye by that object, है ना बेटा। तो यहाँ पे इसके पीछे एक हमें साइंटिफिक रीजन मिल रहा है, वो वाला कौन सा, देखिए हमें दो बातें याद रखने के लिए बताया था ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज है ना, और दूसरा वाला दैट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ए वाला पॉइंट। तो इनके द्वारा जो हमें यहाँ पे जो साइंस पढ़ने के लिए मिल रहा है, इसी से यहाँ पे एपरेंट इमेज बनती है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम डोर को, जैसे फोर्ट में जो डोर्स है ना, हम जैसे कि एक के पीछे एक ऐसे बहुत सारे डोर्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन सामने वाला डोर हमें बड़ा दिखाई देता है और उसके पीछे वाले डोर, देखिए बेटा अभी यहाँ पे ये लेजर बीम के द्वारा यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए बेटा पहला वाला डोर हम देख रहे हैं, सेम डोर है, ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड बिहाइंड, अभी यहाँ पे बिहाइंड विथ ईच अदर है ना, एक दूसरे के बिहाइंड हमें ऐसे बहुत सारे डोर दिखाई देते हैं। तो पहला जब डोर देखते तो हमारी आंखों को बड़ा लगता है, जैसे हम दूसरा डोर देख रहे हैं, देखिए बेटा तो उससे वो छोटा लग रहा है। चलिए बेटा एक तीसरा डोर देखिए, पॉइंटर तीसरा डोर के ऊपर है पॉइंटर, देखिए ये पहले डोर पे, अभी ये पॉइंटर पहले डोर पे ऊपर है तो डोर बड़ा लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा डोर देखिए बेटा, वो उससे थोड़ा सा छोटा लगता है, जैसे अभी तीसरा डोर देखिए वो उससे छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो साइज तीनों डोर का साइज कैसा बेटा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बेटा अलग है, डिस्टेंस यहाँ पे अलग है, और डिस्टेंस अलग होने के कारण उन
डोर के द्वारा, यानी कि वो डोर यहाँ पे अभी सब्सटेंस बोल के काम कर रहे हैं, है ना बेटा। तो उस डोर के द्वारा जो एंगल अपने आंखों में जो एंगल बनता है उसका वो अलग अलग बन रहा है, दैट इज अ थीटा एंगल। अभी वो जो थीटा एंगल जैसे बदलता है उसके ऊपर ही क्या होता है बेटा, ये अपरेंट इमेज निर्भर होती है ना बेटा। और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है बेटा, दैट इज अ यस इट्स अ लार्जर इन साइज, उसकी साइज लार्ज होती हुई दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो इट्स बिकम अ स्मॉलर इन साइज, जैसे जैसे प्रतीत होता है, जैसे अपरेंट दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। चलिए बेटा अभी दूसरा एग्जाम्पल, चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए बेटा, अभी यहाँ पे मैंने आंख दिखाई है ना, देखिए पॉइंटर यहाँ पे एक आंख है। अभी आंखों के द्वारा जब हम देखते हैं तो देखते समय देखिए बेटा हम एंगल ऐसे चेंज करते हैं, जैसे हमें नीचे देखना हो तो देखिए बेटा नीचे, अभी आंखों के द्वारा हम नीचे देखते तो एंगल में बदलाव अलग सा है। अभी थोड़ा सा वो जो एंगल हम जैसे जैसे ऊपर अपनी नज़र जैसे ऊपर घुमाते हैं तो देखिए बेटा एंगल में ऐसे चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे एंगल में चेंजेस होते हैं, जैसे एंगल कम होगा यानी कि थीटा कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी हमें यहाँ पे छोटी दिखाई देती है ना बेटा। और जैसे एंगल जैसे कि थीटा बढ़ेगा तो यहाँ पे वो जो इमेज होती है या ऑब्जेक्ट का साइज भी हमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे कि लार्ज होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो एक ऐसे देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अभी हम आंखों के द्वारा कभी कभी देखिए बेटा, जैसे हम अपने स्कूल में हम क्या करते हैं, जैसे प्लांटेशन प्रोजेक्ट लेते हैं ना, जैसे कि हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करने के लिए हम पहले क्या प्राथमिक रूप में हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेम साइज के हम गड्ढे कर देते हैं, है ना बेटा, खड्डे बोलते हैं हम उसको। अभी जैसे हम वो गड्ढे किए जाते हैं तो सेम साइज पे एक विशिष्ट दूरी पे हम उसको बनाते हैं। तो बनाते समय देखिए ध्यान दीजिए, तो वो पूरा काम होता है और अपने टीचर आके जब देखने लगते हैं तो हम भी उस दृश्य को अपने टीचर के साथ जब देखते हैं तो नज़दीक वाला जो गड्ढा होता है तो हमें बड़ा दिखाई देता है। और ऐसी नज़र अपनी जैसे एक्सटेंड होती है ना, जैसे नज़र अपनी एक्सटेंड होती है तो एंगल भी बदलता है, और जैसे एंगल बदलता है जो सबसे दूरी पे जो गड्ढा दिखाई देता है तो हमें छोटा प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली वो छोटा नहीं होता, क्योंकि वो सेम साइज के होते हुए भी ऐसे हमें प्रतीत होता है, वही अपरेंट है ना बेटा, दैट इज अपरेंट इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यही अपरेंट इमेज हमें यहाँ पे मिलती है। और ये किस कारण मिल रही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए बेटा वो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करे बेटा, दैट इज अ सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। तो अपनी आंखों को लेकर उसका एंगल हमें बदलते हुए दिखाई देता है, थीटा में चेंज होता है, और जैसे ही थीटा में चेंज होता है एंगल में बदलाव होता है तो इमेज के साइज में भी हमें बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेकर एक क्लियरिफाई कर सकते हैं, हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी दूसरा वाला एग्जाम्पल, चलिए दूसरे एग्जाम्पल में हम अभी देखते हैं कि एक देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक आंख दिखाई है और आंख को लेकर यहाँ पे एंगल बनते हुए, जो एंगल कैसे बन रहा है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा और एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कि देखिए बेटा सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। तो ये एंगल यस, जैसे कि यहाँ पे मैंने तीन फिगर बताई है, जैसे कि पहली फिगर है, दूसरी फिगर है, तीसरी फिगर। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा O1 है, O2 है, ये ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेकर। तो ऑब्जेक्ट की जैसे हाइट होती है या लेंथ होती है, साइज होती है, उसी को लेकर यहाँ पे हमें थीटा में भी एंगल में भी बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि देखिए बेटा ये दूसरा वाला दृश्य यहाँ पे मैंने बताया, जैसे हम ऐसे
कोई फोल्ड का ये अंदर वाला हिस्सा है। चलिए अभी हम फोल्ड के अंदर गए वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डोर होते हैं, एक जैसे डोर होते हैं, ठीक है। और कभी जो डोर होते हैं आमने सामने, ऐसे बहुत सारे डोर होते हैं। जैसे हम उसको देखते हैं तो देखिए बेटा वही एंगल ऐसे चेंज होती हुई दिखाई देता है, वो वही दिखाने का यहाँ पे मैंने प्रयास किया है। देखिए बेटा ये जो मैं यहाँ पे पॉइंटर बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज होती हुई दिखाई देता है। दैट्स वी हैव चेंज इट्स, जिससे ठीक है बेटा। अभी ये एंगल क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं, तो डोर क्या करते हैं बेटा, दैट इज अ सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि डोर यहाँ पे, ठीक है। वो एंगल किसको बनाते हैं, एट आर, ठीक है, दैट इज अ थीटा हियर। तो ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हुए हमें इस एंगल को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखिए। अभी तुम अपने आजू बाजू में ऐसे कुछ एग्जांपल्स तुम्हें मिलते हैं क्या, हाँ, थोड़ा सा खोजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अवेलेबल हो तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। क्योंकि अपने आजू बाजू में ऐसे छोटे छोटे पुराने किले या कुछ ऐसे जैसे क्या बोलते हैं हम इसको, जैसे हेरिडिटिकल कुछ ऐसे प्लेसेस या वास्तु होते हैं, उनको जैसे उनको हम जैसे विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, तो ऐसे कुछ ऐसे दृश्य यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ डाटा मिले तो इसे क्या करना है बेटा, उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। उसका एक पूरा एल्बम बनाते हुए ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट भी हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है अपने स्टडी में, स्टडी करिकुलम में इसको भी मार्क्स होते हैं, ये कैरी द 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है बेटा। तो देखिए वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट व्हाट वी हैव लर्न हियर, जस्ट अभी देखिए बेटा, आज की यूनिट में हमने आज क्या लर्न किया, इसको आज हम यहाँ पे क्या करते बेटा, अभी फोकस करेंगे। तो देखिए बेटा, तो इसको देखने के लिए हम अभी थोड़ा सा एक हिंट के रूप में इसको याद करेंगे, ठीक है बेटा। तो हिंट के रूप में याद करने के लिए हमें कुछ ऐसे छोटे से सवाल अपने जैसे माइंड में हमें उसको खुद ही उसको रेज करना है और खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करना है। चलिए बेटा, यहाँ पे अभी कुछ सवाल हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा अपने जो जो माइंड है, यस, या ब्रेन को लेकर उसको ट्रेस करते हुए आंसर हम उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, है ना, फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो कर्सर दिखाई दे रहा है, चलिए ये कर्सर है ना, पॉइंटर। अब इस पॉइंटर को लेकर यहाँ पे एक सवाल मैंने यहाँ पे दिया वाला है। तो देखिए, व्हाई डू यू हैव टू ब्रिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर द आई इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा है? क्योंकि कभी भी देखिए बेटा, हमें कुछ पढ़ना हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देना हो तो हम क्या करते हैं, तो उसके नजदीक जाते हैं। क्यों नजदीक जाते हैं? क्योंकि जैसे हम नजदीक जाते हैं तो वहां पे एंगल थीटा क्या होता है, बड़ा होता है। दैट्स, देखिए बेटा, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, द सबटेंडेड एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई इस बिकेम ए, देखिए बेटा, इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस, देन यस द ऑब्जेक्ट साइज यस बिकम अ लार्ज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और इसी कारण देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है यहाँ पे, है ना। जैसे हम किताब है, अभी किताब को हम ऐसे सही ढंग से रीड करना हो तो हम देखिए बेटा थोड़ा सा आंखों के नजदीक लाकर, लेकिन नजदीक लाते तो यानी कि बहुत ही नजदीक लाने से नहीं दिखता है, उसका जो यहाँ पे नियर पॉइंट होता है और फार पॉइंट होता है, इसको तो हमने लर्न किया है। अभी नियर पॉइंट के ऊपर जैसे नजदीक लाते हैं तो यहाँ पे एंगल भी क्या बनता है, एक सही तरीके से यहाँ पे एंगल वहाँ पे क्या बनेगा, बन पाएगा, मिलेगा। तो हम उस लेटर को या उस ऑब्जेक्ट को सही ढंग से या
क्लियर रूप से देख पाएंगे। आ गया समझ में उसका आंसर? देखिए बेटा अभी दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें रेज होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, खुद ही क्वेश्चन रेज करना है, खुद ही आंसर देने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक हम ऐसे साइंस में नहीं करते, जैसे माइंड को ऐसा ग्लो रखना है, ठीक है, उसको सोचते हुए रखना है, ठीक है, तो लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या मिल रहा है, इफ वी ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, why can we not see it clearly even though it's subtend the bigger angle at the eye? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? जैसे हम नियर, जैसे कि 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक एक आधा कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब लाते हैं आंखों के सामने, तो हमें बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुमने बताया ना, क्योंकि जैसे कि जैसे एंगल जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें लार्ज होते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नियर पॉइंट अपने आंखों को लिमिट है, अभी उस नियर पॉइंट वो कितना है बेटा 25 है, अभी उस नियर पॉइंट के ऊपर ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या उसके, या जैसे कि डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, यानी कि फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट कितना होता है बेटा, एट इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट एट इन्फिनिटी। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखिए बेटा, इन्फिनिटी यानी कि 3 माइल, कितना 3 माइल तक हम जैसे देख सकते हैं, या दूरी की चीजें हम देख सकते हैं, दैट इज अ फार पॉइंट। एंड नियर पॉइंट क्या है 25, दैट्स अ लिमिट। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे हमें ये बात यहाँ पे ध्यान आती है, हमें आंसर के रूप में यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए अपने आजू बाजू में ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं क्या, इसकी कोशिश कीजिए, इसको ढूंढिए, जरूर मिलेंगे। जैसे कि अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे फोर्ट हैं, जैसे कि देखिए कंधार में कंधार का फोर्ट है, ठीक है, उसमें जाके हम ऐसे कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें वहाँ पे जरूर ऐसे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो मिलने वाले एग्जाम्पल है उसको कलेक्ट करना है, उसके फोटोग्राफ्स लेने हैं, ठीक है, और वो पूरे फोटोग्राफ्स ऐसे एल्बम बनाकर बस उसकी जो डाटा होती है या इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करके ऐसे हमें वो प्रोजेक्ट के रूप में बनवाना है। ठीक है, अभी वो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे स्कूल में सबमिट कर सकते हैं एंड इट्स कैरी द मार्क्स देयर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो देखिए, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, तो वी हैव लर्न्स अवर सेल्फ। ठीक है, खुद कोशिश कीजिए, स्टडी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम रुकेंगे। यस, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।